مندرجہ ذیل مضمون میں ہم کامیابی کا راز کے مختلف پہلوؤں، اصولوں اور عملی تجاویز پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اس تحریر کا مقصد قارئین کو ایک مکمل فریم ورک فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ذاتی، پیشہ ورانہ اور روحانی زندگی میں کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ اس لیے ہر باب میں مناسب اور متوازن انداز میں دلائل، مثالیں اور رہنما اصول شامل کیے گئے ہیں۔ اس تحریر کا انداز نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ قارئین کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کا سبب بھی بنے گا۔ ابتدائی تعریف اور مفہوم کامیابی۔ اردو میں کامیابی کے معنی عموماً وہ مقام تصور کیے جاتے ہیں جہاں انسان نے اپنے طے شدہ اہداف حاصل کر لیے ہوں، تاہم کامیابی کے تصور کو ایک جامع تعریف میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: وہ منظم کوشش اور منصوبہ بندی کا نتیجہ جس سے انسان نہ صرف مادی یا بیرونی نتائج حاصل کرے بلکہ ذاتی تسکین، اخلاقی اور روحانی ارتقاء اور معاشرتی خدمت میں بھی حصہ ڈالے۔ کامیابی صرف دولت یا مقام و مرتبے تک محدود نہیں بلکہ خوشی، صحت، مضبوط رشتے اور سکون باطن بھی کامیابی کے اہم اجزاء ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ مادی شے یا عہدہ، ملازمت میں ترقی کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ خود کو محسوس نہ کریں، تعلقات میں کشیدگی ہو یا جسمانی و ذہنی تناؤ لاحق ہو تو وہ کامیابی کا حقیقی مزہ نہیں لے پاتے۔ پس کامیابی کا تصور وسیع ہے اور ہر فرد کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے کامیابی اچھے تعلیمی نتائج، ذاتی ترقی اور مستقبل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ایک پیشہ ور کے لیے کامیابی اس کے شعبے میں مہارت، مؤثر فیصلہ سازی اور ٹیم کی بے مثال صلاحیت پیدا کرنا ہو سکتی ہے۔ اور ایک والدہ کے لیے کامیابی اپنے بچوں کی معنوی اور تعلیمی تربیت میں کامیابی ہے۔ اس تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چل کر ہم کامیابی کے راز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چاہت اور مقصد کا تعین، ویژن گول سیٹنگ۔ کامیابی کا سفر ایک واضح مقصد اور ویژن کے بغیر کٹھن اور بے سمت ہو سکتا ہے، اس لیے پہلا قدم ہے اپنی چاہت اور مقصد کا تعین۔ اپنے اندر سب سے پہلے خود سے سوال کریں: میں واقعی کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کی خواہشات، دلچسپیاں اور جذبے کیا ہیں؟ ممکن ہے آپ کو کئی شعبے پسند ہوں، لیکن ان میں سے وہ منتخب کریں جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی، تسکین اور توانائی فراہم کریں۔ 2. مختصر المدتی اور طویل المدتی اہداف۔ اوجن کے بعد اہداف مقرر کر۔ مختصر المدتی اہداف وہ ہیں جنہیں آپ چند ماہ یا ایک سال کے اندر حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ طویل المدتی اہداف وہ ہیں جن کے حصول میں چند سال یا دہائی لگ سکتی ہے۔ اہداف کا معیار ہونا چاہیے: اسپیسیفک، مخصوص، میجربل، قابل پیمائش، اچیویبل، حاصل کرنے کے قابل، ریلیونٹ، متعلقہ، ٹائملی، وقت کے پابند۔ 3. ترجیحات کا تعین۔ ہر شخص کے پاس وقت اور توانائی محدود ہوتی ہے، ضرور ہے کہ آپ اپنی ترجیحات ترتیب دیں۔ کون سے اہداف فی الحال آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں؟ کون سے اقدامات آپ کو سب سے زیادہ قریب لے جائیں گے؟ ترجیحات کے تعین سے غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع نہیں ہوگا۔ 4. تحریری ریکارڈ۔ اپنے مقاصد کو لکھ لیں، اس سے آپ کا ویژن واضح ہوتا ہے اور آپ باقاعدگی سے ان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تحریری اہداف آپ کو راہ میں درپیش رکاوٹوں کو عبور کرنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ آپ ہر روز ہر ماہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں کامیابی حاصل کی اور کہاں رہ گئے ہیں۔ منصوبہ بندی اور حکمت عملی، پلاننگ اسٹریٹجی۔ ایک مرتبہ اہداف طے ہو گئے، اگلا قدم یہ ہے کہ ان کے حصول کے لیے مفصل منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ مرحلہ وار پلان بنائیں۔ مقصد کو چھوٹے چھوٹے مراحل، مائلسٹونز میں تقسیم کر ہر مرحلے کے لیے ضروری وسائل، مہارتیں، وقت اور ممکنہ چیلنجز کی نشاندہی کر۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کا مقصد اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا ہے تو اس کے مراحل ہوں گے: متعلقہ شعبہ منتخب کرنا، داخلے کے لیے اہلیتیں مکمل کرنا، مطلوبہ امتحانات کی تیاری، داخلہ حاصل کرنا، تحقیق کلاسیں مکمل کرنا وغیرہ۔ دوست، وسائل اور معاونت۔ ہر مرحلے کے لیے مطلوبہ وسائل، وقت، مالی وسائل، ٹیکنالوجی، ہمائی کورسز اور ٹریننگ وغیرہ کا تخمینہ لگائیں۔ اس کے ساتھ یہ جانیں کہ کون سے لوگ، ادارے آپ کی مدد کر سکتے ہیں: اساتذہ، مینٹورز، دوست، کولیگز اور پیشہ ور نیٹ ورک۔ 3. ممکنہ رکاوٹوں کا تجزیہ۔ راستے میں مختلف مشکلات آ سکتی ہیں،
जिनमें माली मसाइल, सेहत के मसाइल, वक्त की कमी, तकनीकी रुकावटें या खुद एतमादी की कमी शामिल हैं। उन चैलेंजेस को पहले से पहचान लें और उनके एहतियाती हल शुदा रोड मैप्स तैयार कर। मिसाल के तौर पर, अगर माली वसाइल कम हैं तो स्कॉलरशिप या पार्ट टाइम आमदनी के ज़राए तलाश करें। अगर वक्त कम है तो वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल के मंसूबे बना, लचक और तब्दीली के लिए तैयार। जिंदगी में गैर मुतवक्के हालात आते रहते हैं। मंसूबा बंदी में ऐसी गुंजाइश रखें कि ज़रूरत पड़ने पर हिकमत अमली को एडजस्ट या तब्दील किया जा सके। अपनी कामयाबी के रास्ते में लचक होना निहायत ज़रूरी है। 5 टाइम लाइन और डेडलाइंस। हर मरहले के लिए तारीखें मुकर्रर करें। जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है जब आप जानते हैं कि मखसूस तारीख तक क्या मुकम्मल करना है। लेकिन अगर किसी मरहले में गैर मुतवक्के मसाइल आए तो नई तारीखें तरतीब दें और दोबारा कमिटमेंट करें। खुद एतमादी और मुस्बत रवैया, पॉजिटिव माइंडसेट, कामयाबी के रास्ते में खुद एतमादी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। अगर आप अपने अंदर शुकूक या अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें तो आपके इक़दामात में हिचकिचाहट और ताख़ीर पैदा होगी। एक खुद एतमादी कैसे बढ़ाएं? अपनी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं। साबिक़ा तजुर्बात के मुस्बत पहलुओं को याद करें और अपनी सलाहियतों को पहचानें। अपने अंदर ये सोच पैदा करें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं लायक हूँ। अफ़र्मेशंस का इस्तेमाल भी मददगार होता है। रोज़ाना सुबह रात को मुस्बत जुमले दोहराना के मैं काबिल हूँ, मैं हिम्मत से काम लेता हूँ, मैं अपने मकासद हासिल करने के लिए एक्शन ले रहा हूँ, वगैरह। 2 खौफ और शक को काबू करें। खौफ नाकामी और नाकाफी समझने के तासुर को शनाख्त कर जब भी ये ख्यालात आएं तो उनका मुकाबला हक़ाइक़ और कोचिंग के ज़रिए करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोचते हैं मुझे ये प्रोग्रामिंग नहीं आती, मैं नाकाम होऊंगा, तो उसके मुतज़ाद सबूत तलाश करें। मैंने पिछली बार एक चैलेंजिंग टास्क हल किया, ये मैंने कोर्स लिया और बुनियादी समझ बोझ हासिल की, वगैरह। 3 मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी। रोज़ाना कम अज़ कम चंद लम्हे इन चीज़ों के बारे में सोचें जिन पर आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो छूटी हो। मुस्बत रवैया दिमाग को तनाव से बचाता है और नए मौके तलाश करने में मदद देता है। ये आदत आपको मुश्किलात के बीच भी हौसला देती है। 4 खुद एहतिसाबी का तवाज़ुन। खुद एतमादी के साथ साथ खुद एहतिसाबी भी ज़रूरी है। जब आपने कोई गलती की हो तो इसे तस्लीम करें, लेकिन खुद को सज़ा देने के बजाय सीखने के जज्बे के साथ आगे बढ़ें। खुद एहतिसाबी का मकसद बेहतरी है, इज्जत नफस को ठेस नहीं पहुंचाना। लगन और मुस्तकिल मिजाजी। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस। कामयाबी का एक बड़ा राज मुसलसल मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी है। ये वो खुसूसियात हैं जो आपको रुकावटों से गुजर कर आगे बढ़ने में मदद देती है। एक रोज़ाना का मामूल और आदात। कामयाब लोग आम तौर पर मुस्बत और मुअस्सिर आदात रखते आओ, चाहे मुताला हो, वर्जिश हो, तख्लीकी अमल हो या नेटवर्किंग। इसे रोज़ाना मामूल का हिस्सा बनाएं। एक मुनज़्ज़म रूटीन ज़हन और जिस्म को डिसिप्लिन में लाता है। 2 छोटे कदम, बड़ा फ़र्क। कभी कभार हम बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए इंतज़ार करते हैं कि सब कुछ यकदम हो जाए, लेकिन हकीकत में रोज़ाना छोटे इक़दामात ही होती हैं जो बामानी तब्दीली लाती हैं। मसलन, अगर मुताला के लिए रोज़ाना सिर्फ 50 सफ़हात पढ़ें तो माहाना 1000 सफ़हात बनते हैं। ये छोटे लेकिन मुस्तकिल इक़दामात ही तवील अलमुद्दती कामयाबी का राज हैं। 3 हौसला ना छोड़ना। जब नाकामी या ताख़ीर हो तब भी हौसला ना छोड़ें। हर नाकामी में सबक होता है। हर नाकामी के बाद अब बेहतर हिकमत अमली आ नया ज़ाविया इख्तियार कर सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी आपको हर शिकस्त के बाद उठने और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देती है। 4 खुद नज़्म व ज़ब्त। ये वो ताकत है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मुश्किल काम करने पर आमादा करती है। जब आप चाहें सस्ती करना या ताख़ीर करना, खुद नज़्म व ज़ब्त आपको याद दिलाता है कि आपके अहदाफ कितने अहम हैं। खुद नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए रोज़ाना मामूलात बनाएं। टाइम ब्लॉक्स मुख्तस करें और गैर ज़रूरी खलफिशार डिस्ट्रैक्शंस कम करें। मसलन, सोशल मीडिया के लिए मखसूस वक्फे मुख्तस करें। 5 आदात का जायज़ा। वक़्ता फ़ौक़ता अपने मामूलात का जायज़ा लें कि कौन सी आदात कामयाबी में रुकावट है और कौन सी मददगार। गैर ज़रूरी या नुकसानदेह आदात तर्क करें और मुस्बत आदात को बड़े तालीम व महारत की अहमियत। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। असर हाजिर में तरक्की के लिए तालीम और मुसलसल सीखना लाजमी है। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज़ और रुझानात
सामने आ रहे हैं। जो शख्स अपनी महारतों को अपडेट रखेगा वो मौके से फायदा उठा सकेगा। एक बुनियादी इल्म और महारत कामयाबी के शोबे के मुताबिक बुनियादी तालीम और महारतें हासिल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग के उसूलों के साथ साथ सिम सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह सके। अगर आप इंजीनियरिंग या आईटी में हैं तो मुताल्लिका प्रोग्रामिंग ज़ुबानी टूल्स और सिक्योरिटी इल्म हासिल करें। 2 मुसलसल सीखने का जज्बा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक मर्तबा डिग्री या कोर्स मुकम्मल करने के बाद सफ़र ख़त्म नहीं होता। ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर किताब पढ़ें, तहकीकाती मकालात, रिसर्च पेपर्स और ब्लॉग्स पढ़ें, खुद मुताला, तजर्बात और प्रोजेक्ट्स के जरिए अमली तजर्बा बढ़े। नेटवर्किंग और कम्युनिटी। अपने शोबे के पेशावर अफराद से राब्ता कायम करें। लिंक्डइन और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ग्रुप्स में शामिल हों, एक दूसरे के तजर्बात से सीखी, सवाल करें और मदद फराहम करें। एक मजबूत पेशावर नेटवर्क नए मौके, ताउन और तजावीज़ फराहम करता है। 4 सर्टिफिकेशन और तस्लीम शदा मेयार। बहुत से शुबों में काबिल कबूल सर्टिफिकेट्स इखलाकी मेयार स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आपका शोबा ऐसा है तो मुताल्लिका सर्टिफिकेट्स हासिल करें ताकि आपके प्रोफाइल की कदर बढ़े। ताम सर्टिफिकेट के हुसूल के बाद भी अमली तजर्बा और मुस्तकिल अपडेट ज़रूरी है। 5 जदीद टेक्नोलॉजी और रुझानात। टेक्नोलॉजी के बदलते रुझानात मसलन एआई, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन वगैरह की समझ बोझ रखें। ये आपको नए मौके के लिए तैयार करेगा, लेकिन हर नए रुझान में कूदने से पहले मुनासिब तहकीक करें कि आया वो आपके मकसद और वसाइल के मुताबिक है या नहीं। वक्त का इंतज़ाम। टाइम मैनेजमेंट। वक्त वो महदूद वसीला है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। कामयाब अफराद वक्त को कीमती समझते हैं और मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। एक तरजीहात का तयन और टाइम ब्लॉकिंग। रोज़ाना और हफ्तावार वाजिबात में तरजीहात की बुनियाद पर काम तरतीब ज़रूर और अहम कामों को पहले करें। मसलना का इस्तेमाल करें। अहम और फौरी, अहम लेकिन गैर फौरी वगैरह। टाइम ब्लॉक्स बनाएं। मखसूस औकात में मखसूस कामों पर तवज्जो दें। इससे तवज्जो को मुस्तहकम रखने में मदद मिलती है और खलफिशार कम होते हैं। 2 गैर ज़रूरी खलफिशार से बचाव। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गैर मुताल्लिका गुफ्तगवान में एतदाल रखें। बाज़ औकात ओ डिजिटल डिटॉक्स हुआ मखसूस औकात में ऑनलाइन वक्त कम करना फ़ायदा मंद होता है। 3 ब्रेक्स और आराम। मुसलसल काम के दौरान वक्फे लेना भी ज़रूरी है ताकि दिमाग ताज़ा रहे। तकन का जैसी टेक्निक इस्तेमाल करें। 25 मिनट काम, 5 मिनट आराम। तवील और गहरी तवज्जो के लिए ये तरीका कारआमद है। 4 डेली, वीकली और माहाना जायज़ा। रोज़ाना के आखिर में देखें कि क्या मुकम्मल हुआ और क्या मुलतवी हुआ। हफ्तावार जायजे में अगले हफ्ते के अहदाफ मुयन करें और माहाना जायजे में बड़े अहदाफ की तरफ पेशरफ्त का जायजा लें। ये जायजे आपको ट्रैक पर रखते हैं और आपकी मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखते हैं। 5 नहीं कहना सीखें। हर दावत का मौका काबिल कबूल नहीं होता। जब किसी सरगर्मी से आपके अहम अहदाफ आ वक्त को नुकसान पहुँचे तो शाइस्तगी से इनकार करना सीखें। इससे आप अपने तवानाई और तवज्जो को मरकजी अहदाफ पर मरकूज रखते आओ। मिस्बत सोच और जज्बाती जहानत, पॉजिटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। कामयाब लोग सिर्फ मंतिकी हिकमत अमली पर इन्हिसार नहीं करते बल्कि अपने अंदरूनी जज्बात और रद्द-अमल को भी कंट्रोल करते हैं। एक जज्बाती शऊर। अपने जज्बात को पहचानें और समझें। जब आप परेशान, गुस्से या खौफ में हों तो फौरी फैसले करने से गुरेज करें। जज्बाती शऊर आपको बताता है कि आप किस हालत में हैं ताकि आप बेहतर फैसला साजी कर सकें। 2 जज्बाती खुद नज़्म। जब मनफी जज्बात आएं तो उन्हें मुस्तरद करने के बजाय कबूल करें और मुस्बत राह निकालें।